students. Today we are going to start our first chapter of numerical methods. I am following the book of numerical methods by Sharma Publications. Our first chapter is solution of non-linear equation. In this chapter we are going to study different methods which are called numerical methods or iterative methods to solve quadratic equations, cubic equation, or we can say algebraic equation and transcendental equations. For this, we have to first study about the definition of algorithm. That is the step-by-step methods or step-by-step sequences of performing a specific task. So let's read the definition. An algorithm is precisely defined sequence of steps for performing a specific task. For example, we have taken one of the examples from the statistics. As you have already studied in your 10th standard and 9th standard about the mean and standard deviation. So here, for calculating mean and standard deviation S of a collection of data, the mean is the most commonly used value to locate the middle of a data set, and the standard deviation measures the variation of the data from the mean. It means कि जब भी आप किसी डाटा के मिडल एलिमेंट को चेक करते हैं, it is the mean which is called a mean. Mean is the most commonly used value to locate the middle of the data, and the standard deviation measures the variation of the data about the mean. तो जो भी आपके पास डाटा होगा उससे कितना आपकी वेरिएशन है अबाउट द मीन, हम उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं. So let n denote, the small n denote the number of elements in the data set. For example, अगर 5 है, 5 elements आपके पास given है, तो आपके पास n is equals to 5. And let xi denote an individual element from the data set. xi जैसे x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 5 है, x6 की वैल्यू x3 की वैल्यू 6 है, एनीथिंग. तो इसमें हमने जनरलाइजेशन दे दी. xi denotes an individual element from the data set where I ranges from 1 through n. 1 से लेके अगर 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने बोला n इज इक्वल्स टू 5 है, तो उसमें 5 एलिमेंट्स दिए होंगे. अगर n इज इक्वल्स टू 10 है तो उसमें 10 एलिमेंट्स दिए होंगे. तो हमारे पास मीन आ गया x बार, जो उसका फॉर्मूला हमने आज तक पढ़ा है कि i वेरीज फ्रॉम 1 to n समीशन xi over n, where we can write it as x1, x2, x3, x4, x5 if n is equals to 5 divided by 5. This is our standard formula to calculating the mean. And here the standard deviation, the basic formula is this one, n summation I n 1 to n xi का square minus summation I 1 to n xi का whole square divided by n into n minus 1 s. This is our first equation. Now the next is inputs. What inputs we should give to our elements so that we can find the mean and the standard deviation. हमें inputs में क्या चाहिए, बेसिकली हमें क्या given होना चाहिए तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. तो here xi and n are the basic elements we need. Now steps to be performed. These steps to be performed are basically known as algorithm to solve any question. जो आपको कोई इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्यूबिक करनी है, ट्रांसेंडेंटल करनी है, अलजेब्राइक करनी है, किस टाइप से करनी है, उसमें जो स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन, वी से दोज कलेक्शन ऑफ स्टेप्स एज एन एल्गोरिथम. ठीक है. तो देयरफॉर द स्टेप्स परफॉर्म हमें क्या चाहिए, बेसिकली
हमारे पास समीशन i1 to n xi होना चाहिए, समीशन i1 to n xi का स्क्वायर होना चाहिए. सो द एल्गोरिथम स्टार्ट्स फ्रॉम द गिवन. तो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन हमारे पास है एन एरे ऑफ रियल नंबर्स xi, जो हमारे पास नंबर्स का सेट होगा, जैसे x1 x2 x3 x2 x4 x5 तक. एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे कितने हैं वो हमें बताना चाहिए. देन स्टेप 1, इनिशियलाइज x सम एंड एक्स स्क्वायर सम टू ज़ीरो. इनिशियलाइजेशन करेंगे हम सम का. फिर x2 क्या होता है? फॉर i फ्रॉम 1 to n ऐड करना होता है xi टू x सम. x मतलब जहाँ तक आपको सम दिया गया है, ऐड xi स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर सम, जो उसका टोटल सम आएगा xi स्क्वायर का, हम उसे x स्क्वायर, और इसके बाद इन दोनों का सम करने के बाद एंड हो गया. ठीक है. तो पहले हमारे पास इनिशियलाइज़ किया हमने, वैल्यूज़ निकाली x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn की तरह. उसी तरीके से x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर, अगर 5 एलिमेंट्स है तो हमने उसका नाम दे दिया x स्क्वायर. Then step 3, we have to calculate x bar. X bar means the mean of the elements. तो x bar को हम लिखते हैं, x bar हम रीड करते हैं और हमारे पास x bar आता है. इट इज़ इक्वल टू x सम ओवर n, मतलब समीशन x, कहने का मतलब है समीशन x i ओवर n. तो x सम ओवर n एक ही चीज़ है. देन स्टेप 4, वी हैव टू कैलकुलेट द s. s इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, और एस स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ, जो भी हमने पीछे लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एन एक्स समीशन एक्स आई का स्क्वायर, तो वो लिखा गया एक्स स्क्वायर सम, एक ही बात है. एंड माइनस समीशन ऑफ एक्स आई, या फिर हम कहते हैं एक्स सम का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन माइनस वन. आउटपुट क्या आएगा? एक्स बार और एस की वैल्यू. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एनीथिंग, बट इट विल गिव द वैल्यूज़ इन नंबर्स. ओके. जैसे यहाँ पे एल्गोरिथम है, हर एक चीज़ का जैसे हम मेथड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास कोई ना कोई प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहेंगे. और हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बिकॉज आवर फर्स्ट topic of numerical methods of our first chapter is algorithm. Okay, I think now you are clear with the term algorithm. Now our next topic is convergence. Convergence आपने पहले भी पढ़ा है in your second semester or second year, in which book, the real analysis book. In real analysis book you have studied about the sequences series. So here we are going to study about the convergence. और ये भी एक तरीके की convergence है, because हम मेथड से थोड़ा वैल्यूज़ निकालते हैं और उन वैल्यूज़ को डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास जब एक स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं तो वो वैल्यूज़ निकलती हैं, उन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं उनकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं कि ये मेथड से अलग वैल्यू आएगी, दूसरे मेथड से अलग वैल्यू आएगी, तो किसकी कन्वर्जेंस नियर टू द सॉल्यूशन है. तो दैट इज़ हम देखते हैं इसको क्या चीज़ करते हैं. तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है अपनी लोअर क्लासेस में. तो यहाँ पर आ रहा है, मैनी ऑफ द एल्गोरिथम दैट विल बी डेवलप्ड इन लेटर चैप्टर विल बी इटरेटिव इन नेचर. तो आपके पास इटरेटिव वर्ड्स आ रहा है, और ये इटरेटिव वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इटरेटिव वर्ड का मतलब होता है रिपीटेड. सो रिपीटेड टाइप की होगी, आप मतलब एक के बाद एक दोबारा से नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेक करेंगे अपनी वैल्यूज़ को. These algorithms will generate a sequence of approximations that converge towards the desired solution. When several techniques are available for solving a particular problem, we would generally like to choose a technique whose sequence converges as rapidly as possible. तो कहने का मतलब है कि जब हम बहुत सारी टेक्निक्स अभी आगे पढ़ेंगे तो हम ये किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो हमें क्या करना है, हमें वो मेथड यूज़ करना है
नाउ रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये वही चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी रियल एनालिसिस में पढ़ी हैं. तो हेयर द रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस xn converges to the value capital L provided that limit x tends to infinity xn is equals to L, or we can say limit n tends to infinity mod xn minus L is equal to 0. The value to which the sequence converges to L is called limit of the sequence. A sequence for which limit n tends to infinity xn does not exist is said to diverge. जो कि sequence अगर converge, so अगर आपकी sequence converge नहीं करेगी, then we say the sequence is divergence if the limit n tends to infinity xn does not exist. Now the two principal measures of convergence speed are known as rate of convergence and order of convergence. ये दोनों चीज़ें आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी हैं अपनी, जिसमें आपके पास मेजर टोटल क्या होता है प्रिंसिपल का. टू प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं आपके मेजर ऑफ कन्वर्जेंस, जो स्पीड रहेगी उसकी वो आती है रेट ऑफ कन्वर्जेंस चेक करके या फिर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस चेक कर. नाउ लेट अस डिफाइन रेट ऑफ कन्वर्जेंस. क्या होती थी रेट ऑफ कन्वर्जेंस? लेट सीक्वेंस Pn be a sequence that converges to a number p if there exists a sequence beta n that converges to 0 and a positive constant lambda independent of n such that mod of pn minus p less than equal to lambda beta n. इसमें कहने का हम क्या करते थे, वहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट करते थे. कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास क्या होता था कि हम दो सीक्वेंसेस ले लेते थे और फिर उसमें कंपेयर करते थे, लिमिट चेक करते थे और उसके अकॉर्डिंगली हम ए एन बी एन होती थी वहाँ पे लिमिट्स. वैसे ही यहाँ पर भी आपके पास होगी. यहाँ पर आप कैसे चेक करोगे, तो हमारे पास पी एन सीक्वेंस जो हमने सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स निकाले हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशंस निकाले हैं जैसे, तो यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस रहेगी पी एन और वो कन्वर्ज हो रही है किसी पर्टिकुलर पी जो कि आपका सॉल्यूशन रहेगा उस जो भी आपका क्वेश्चन होगा, अलजेब्रिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, जो भी जिनका भी आपको सॉल्यूशन निकालना है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निकालना है या कुछ भी निकालना है, डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर भी आपके पास उसी तरीके से रहेगा कि कोई सीक्वेंस आया है पी एन, वो कन्वर्ज होगा सॉल्यूशन को. तो हमारे पास सॉल्यूशन की कन्वर्जेंस कैसे चेक करेगी, इफ़ देयर एग्जिस्ट सम लैम्डा एंड बीटा एन सच दैट मॉड ऑफ पी एन माइनस पी इज लेस देन लैम्डा सीक्वेंस ऑफ बीटा एन. For all sufficiently large values of n, then Pn is said to converge to P with rate of convergence O, कैपिटल O और बिग O बीटा n. O को हम ऑर्डर भी कहते हैं. तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या रहेंगे, बिग O ऑफ बीटा n. तो इसकी जैसे अगर बीटा n कन्वर्जेस टू ज़ीरो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना बीटा एन दैट कन्वर्जेस टू ज़ीरो, तो हम कहेंगे कि पी एन जो सीक्वेंस है हमारी दैट कन्वर्जेस टू इट्स सॉल्यूशन जो पी है. ठीक है, तो आपके पास लिमिट आ रही है सीक्वेंस पी एन की, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन जैसे आपके पास आए हैं तो उसमें से जो जैसे पॉइंट्स में आए हैं, कई वैल्यूज़ आई हैं, तो उनमें जो डिफरेंस रहेगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा बीटा एन. ये पी एन पी को तभी कन्वर्ज करेगा जब बीटा एन सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी ज़ीरो को. तो हम इस ओ को लिखते हैं बिग O ऑफ बीटा एन, एंड देयरफॉर वी से पी एन इज इक्वल्स टू पी प्लस ऑर्डर बीटा एन. लेट्स सी दिस विद दिस एग्जाम्पल कि जो ऑर्डर है 1/n का, जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड में रियल एनालिसिस में पढ़ा है, तो ऑर्डर या फिर बिग O ऑफ 1/n² सीक्वेंस, जो 1/n² सीक्वेंस होगी उसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, इट विल बी लेस देन और कन्वर्जेंस ऑफ बिग O 1/n10. मतलब जिस रेट से 1/n रेज टू द पावर 10 कन्वर्ज करेगी उसका रेट जो है 1/n² से ज़्यादा होगा. सिमिलरली the rate of convergence of the sequence 1/2 raised to power n should be greater than the rate of convergence of 1/n whole to the power 10, and again it is
greater than 1 over n square. तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस की आपके पास ये सीक्वेंस रहेगी कि 1/2 होल टू द पावर n converges faster than rate of convergence 1/n raised to the power 10 faster than 1/n square. Now since we are studying about the numerical methods, different methods of based on numericals और numbers, तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए. जैसे आपने सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा है रियल एनालिसिस में, तो आपके पास सीक्वेंस लेट दो आपके पास सीक्वेंस दिए है n+3/n+7 एंड 2^n+3/2^n+7. ये दो सीक्वेंसेस आपके पास दी हुई है. तो n हम बेसिकली नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं. हमने डिफाइन किया होता है कि वी डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ ए एन इज सच दैट वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ naturals. तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. तो यहाँ नेचुरल नंबर n इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास n+3/n+7 की वैल्यू आ गई 0.5000 ले लिया हमने बिकॉज अदर वैल्यूज़ आर लाइक दिस. 2^n+3 n की जगह सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू 1 और n की जगह सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू 1. तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई बाय कैलकुलेटर. उसके बाद 2 सब्स्टिट्यूट किया इधर 0.555. फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया इधर यही n2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया. जब n3 सब्स्टिट्यूट किया तो इस सीक्वेंस से हमारे पास वैल्यू आ गई 0.6 और यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया इस वाले सीक्वेंस में n=3 तो ये वैल्यू आ गई. सिमिलरली वी गॉट दिस टेबल एंड वी सब्स्टिट्यूटेड अप टू n=9 और यहाँ पे हमारे पास 9. अब आप देखो कंपेयर करो अगर दोनों सीक्वेंसेस को तो हमारे पास क्या आ रहा है. जो सीक्वेंस n+3/n+7 है इसकी कन्वर्जेंस क्या है अबाउट 9 0.75 और इसकी कन्वर्जेंस क्या है ये. तो इसका मतलब क्या है इट कन्वर्जेस फास्टर. 2^n वाली जो टर्म्स है इट कन्वर्जेस फास्टर. यही चीज़ हम क्या कह रहे थे यहाँ पर कि जो हमारे पास सीक्वेंस रहेगी 1/2^n की फॉर्म में इट्स रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज faster than 1/n⁻10 then faster than 1/n square. सबसे कम रेट ऑफ कन्वर्जन 1/n स्क्वायर की है. ठीक है. तो हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है इसमें हमने किया तो अब हम लिमिट लेते हैं जैसे हम अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में लेते थे. लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी. इसकी लिमिट भी 1 है और इसकी लिमिट भी 1 है बट 1 की तरफ फास्टर कौन है दिस वन क्योंकि एज 9th वैल्यू पे आपके पास ऑटोमेटिकली नियर टू 1 वेरी क्लोजर टू 1 वेयर इज इधर डिफरेंस ज़्यादा है. तो बोथ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1. इफ़ वी डिटरमाइन रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ईच सीक्वेंस n+3/n+7 -1 इज इक्वल्स टू 4/n+7 और 4 1/n. ये हमने क्यों किया इसको हमने ऐसे क्यों लिखा बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर विद दिस वन जो आपके पास यहाँ है Pn माइनस पी लेस देन इक्वल टू लैम्डा बीटा n. तो Pn हमारे पास n+3/n+7 है -1 1 उसकी लिमिट ऑफ सीक्वेंस है तो इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बीटा n रहेगा. ठीक है. तो आपके पास क्या रहा है इफ़ वी डिटरमाइन द रेट ऑफ कन्वर्जेंस तो हमारे पास n+3/n+7 -1 इज लेस देन 4 मल्टीप्लाई बाय 1/n. तो हेयर लैम्डा 4 हो गया बीटा n क्या हो गया 1/n बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस. Hence the sequence converges to 1 with rate of convergence order or big O 1/n. Similarly, for the second sequence 2^n+3 over 2^n+7 -1 because sequence converges to the limit 1 which can be written as 4/2^n+7. This is comparable to lambda where 4 dot 1/2^n. If lambda is 4 beta 1/2n. So in the definition of convergence
the sequence converges to 1 with the rate of convergence this order beta n. तो rate of convergence इसका 1 over 2 raised to power n होगा. तो which shows from the numerical evidence also कि 1 over 2 raised to power n converges faster than 1 over n. This 1 over n. So therefore 1 over 2 raised to power n approaches 0 faster than 1 over n as n tends to infinity. Next is definition is order of convergence. So first of all we define limit of sequence. Let f be a function defined on the interval ab, open interval ab, that contains x is equals to 0, and suppose that limit x tends to 0, f of x is L. If there exists a function g for which limit x tends to 0, gx is equals to 0 and a positive constant k such that mod of fx minus L is less than equal to k mod gx for all sufficiently small values of x, then fx is said to converge to limit L with rate of convergence order gx. जो चीज़ हमने अभी इससे पहले डिफाइन की जहाँ पे gx की वैल्यू आपके पास बीटा n पे डिपेंड कर रही थी, वो सीक्वेंस था. यहाँ हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है. तो हमारे पास फंक्शन की लिमिट कन्वर्जेस टू L तभी होगी विद द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ order or big O gx. Now order of convergence we study here. Next, as the rate of convergence examines individually the terms in the sequence of error values an is equals to pn minus p. अब ये error की बात कहाँ से आ गई? तो जो pn है जैसे हमने sequences दी होती थी 1 2 3 4 और 5, बट उसका जैसे 1 over 1 1 over 2 1 over 3 जिसमें सीक्वेंस 1 over n आती थी, तो 1 over n आपके पास सीक्वेंस आ रही है. मतलब n को आप 1 से लेके जब तक आपने डिफ़ाइन किया है जो भी इंटरवल डिफ़ाइन किया है वहाँ तक अगर आप उसको डिफ़ाइन करते हैं, जैसे n अगर आप ले कह रहे हैं 1 से लेके 10 तक, तो जो सीक्वेंस बनेगी वो 1 1 over 2 1 over 3 अप टू 1 over 9 1 over 10 तक बनेगी. तो हमने वो सीक्वेंस ले ली, तो जनरल फॉर्म उसकी क्या होती है 1 over n होती है. तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बन जाएगी 1 over n माइनस किसको कन्वर्ज करती है एज एन टेंड्स टू 0 या एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होता था 1 over n की लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगा, इट इज़ 0, है ना. तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे जो एरर है, एरर में कहने का मतलब है कि जो वैल्यू जैसे 1/2 है 1/3 है 1/4 है वो 0 से कितना दूर है, दैट इज़ द डिफरेंस. तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द सक्सेसिव एरर. जो हमारे पास एरर्स आते हैं तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसके बीच में आपको रिलेशन बताता है कि क्या रिलेशन रहेगा. तो मेजरिंग द इफेक्टिवनेस विद विच ईच इटरेशन रिड्यूसेस द अप्रॉक्सीमेशन एरर. So we have that the order of convergence examines the relationship between successive errors values, and error values are en is equals to the difference between the limit and the pn. pn में आप डिफाइन कर सकते हो n from 1 to जहाँ तक भी आप लेना चाहते हैं अपनी approximations को या iterations को. Now therefore our next definition is let sequence Pn be a sequence that converges to a number P. Let En be the error which is Pn minus P for n greater than equal to 0. If there exists positive constant lambda and alpha such that limit n tends to infinity Pn plus 1 minus P over Pn minus P mod whole to the power alpha is equals to limit n tends to infinity the error n plus 1th over En to the power alpha is equals to lambda which is a constant value, then sequence Pn is said to converge to the limit P of order alpha. इसकी order alpha रहेगी limit and with asymptotic error. जो asymptotic error रहेगा that will be lambda. So it follows that for a sequence that converges of order alpha the error satisfies the asymptotic relation. ये relation उसको follow करना ही पड़ेगा. ठीक है कि आपके पास जो भी sequence है अगर वो converge करती है with order alpha के साथ तो error जो उसके बीच का difference है, जो Pn और P के बीच का difference है, that satisfies the asymptotic relation. इस relation को वो follow करेगा ही करेगा. ठीक है. तो now we
हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू जैसे निकालनी है किसी भी नंबर या किसी वैल्यू की, जो भी आपके पास फंक्शन दिया है तो उसकी स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट के लिए रिकरेंस रिलेशन बनता है वो बनता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स एन प्लस ए ओवर एक्स एन। ये रिकरेंस रिलेशन बनता है अगर ये रिलेट्स टू कंप्यूट एन अप्रॉक्सीमेशन टू स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर ए। अगर स्क्वायर रूट निकालना है किसी एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये रिकरेंस स्कीम बनती है जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है किसी एलिमेंट का। तो नेक्स्ट आपके पास है, टू गेट दिस वी मस्ट बी एबल टू कंपेयर द एरर इन द n प्लस वनथ टर्म इन द सीक्वेंस एक्स एन प्लस वन। ये कैसे है एक्चुअली में, हमें क्या निकालना है, जैसे हमें किसी को बोला जाएगा कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो ये कुछ वैल्यू आएगी, ये सॉल्यूशन बनेगा, ये एक इक्वेशन है, एक कोई वैल्यू होगी। जैसे समझ लो आपके पास 25 है, 26 है, 27 है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने को किया जाए तो रैंडमली, तो आप इसको जर्नलाइज फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। तो जर्नलाइज फॉर्म में आप इस तरीके से लिखेंगे एंड वी गॉट दिस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो आपके पास रिकर्सिव रिलेशन जो स्कीम बनेगी जिसको हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, तो कौन सी सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस तो ये है जिसमें एक्स एन प्लस वन, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस टू, और वी कैन से जिस तरीके से आपके पास चलेगी विद द एरर इन द nth टर्म। जो nth टर्म में एरर होगा वो ये होगा, एन प्लस वन में ये एरर होगा, एन की जगह पे आपको जस्ट रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स एन प्लस वन माइनस रूट ए एन ए इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन की वैल्यू हमारे पास ये है रिकर्सिव स्कीम के साथ, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गई माइनस रूट ए इक्वल्स टू एक्स एन स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर में आपके पास ये आ गया सॉल्यूशन। और हमने जो लास्ट में पढ़ा है, जो ऑर्डर के बारे में पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज़ द ऑर्डर, तो आपके पास देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन माइनस रूट ए ओवर एक्स एन माइनस रूट ए का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रूट ए, बिकॉज एक्स एन इज इक्वल टू रूट ए। nth वैल्यू भी आपके पास वही है, n प्लस वन भी आपके पास वही है, तो हमारे पास ये आ गई। हैंस द सीक्वेंस जनरेटेड बाय दिस स्कीम हैज़ द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू 2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू 2 एंड एसिम्प्टोटिक एरर इज दिस वन, जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है। यही चीज़ हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी। तो आपके पास एसिम्प्टोटिक एरर क्या रहेगा, उसके लिए हमने कैलकुलेशन देखी थी। ठीक है, तो ये आपके पास एरर दैट सेटिस्फाइज। ओके, ये रहा आपके पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन प्लस वन माइनस पी। यही चीज़ हमने यहाँ पे करी, जो लिमिट है पी एन माइनस पी अल्फ़ा, तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा आ गया विच इज़ इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो आपके पास यहाँ पे ई एन प्लस वन ओवर ई एन की पावर अल्फ़ा है, दैट इज़ दिस, और आपके पास लैम्डा, वेयर लैम्डा इज़ द एसिम्प्टोटिक एरर। तो ये आपके पास यहाँ पे एसिम्प्टोटिक एरर ये आ गया, और यहाँ पर आपके पास आ गया ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू